सलामी मंच से कुछ देर में प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष आज के समारोह का मुख्य थीम। Ceremony and tradition giving context to modernity. Today the signs and symbols of national celebration become more meaningful. And as we foreground them, our individual identities take a back seat and responsible nationhood leads the way. And we saw glimpses of that. Across the armed forces, across the civilian performers. And as the dignitaries depart from the saluting base and we conclude yet another Republic Day parade in New Delhi, we would do good to remember that our extraordinary existence as a civilization has withstood centuries of transformation and still stands strong with its uniqueness in place. We are, however, a young republic, still settling in, still adopting, and still adapting. Our strength has always been our ability to embrace and hold different extremes with gravitas and fortitude, with balance and dignity, tradition and modernity, change and continuity, reconciliation and resistance, and of course resilience and fragility. And India's ability to allow space of change in opinions and differences is what gives it the power to sustain and grow from strength to strength. And here applause growing from strength to strength. Everybody has been waiting. This has become virtually tradition now. Prime Minister Narendra Modi, before departing from the venue, goes right up along either side of the enclosures and Kartavya Path to greet people up close, first hand. समारोह का वो हिस्सा जिसकी प्रतीक्षा यहाँ मौजूद सभी को रहती है, जब प्रधानमंत्री उनके निकट, उनके दीर्घाओं के निकट पहुंचते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। यादगार के कुछ और पल उनकी यादों में शामिल, और प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि वो काफी दूर तक इन दीर्घाओं में जो दर्शक हैं उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं और उनका अभिवादन स्वीकार करें। And as the Prime Minister slows down to interact with the people, Kartavya Path becomes a canvas of emotion and national pride. Across the majestic boulevard, thousands rise to their feet. Hands waving, eyes searching, hearts racing for a glimpse that many have waited years for. With every wave and folded greeting, the Prime Minister acknowledges the faith of the people seated across Kartavya Path. In that simple gesture lies a powerful connection of trust, respect, and shared destiny. For countless citizens present here today, this is not merely a visual moment. It is an experience that will be remembered for a lifetime, retold to families, preserved in photographs, and cherished in quiet reflection. The excitement visible on these radiant faces here. Children craning their necks, elders offering blessings, tricolors fluttering with pride, speaks volumes of a nation's collective hope. This is leadership, not from a distance, but leadership that reaches out, listens, and reassures. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक आयोजन हैं और उनमें जो जन भागीदारी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। और उसी क्रम में जो दर्शक
यहाँ पर कर्तव्य पथ के दोनों ओर दीर्घाओं में उपस्थित हैं, उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं कि कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके नजदीक आएंगे, उनके साथ उनको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, उनकी यादगार फोटोग्राफ को अपने साथ संग्रहित करने का, संचित करने का अवसर मिलेगा। और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट अवसर होता है एक आम नागरिक के लिए, जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व उसके इतने पास हो, उससे इतनी प्रॉक्सिमिटी उनकी बन रही हो, तो अपने आप में उसके व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर होता है। और इन चेहरों पर जो उल्लास है, जो उत्कंठा है, जो उमंग है, वो स्पष्ट देखी और पढ़ी जा सकती है। 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य समापन हुआ है परेड का, जहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हुआ, देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, समृद्धि का मंत्र जो बन करके उभरा है, उसका अवलोकन किया देश ने, सारी दुनिया ने। आजादी का महोत्सव हम मना रहे हैं और पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। देश का सर्वोच्च नेतृत्व सुनिश्चित कर रहा है कि विकास की यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा पावन संकल्प है। Prime Minister Narendra Modi, waving to the engines of any democracy, its driving force, its people. The country we all build is the country we bequeath. अब नजर है 2047 पर, जब आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे। हम लगातार लक्ष्यों को सामने रखकर उन्हें पाने के प्रयास में लगे हैं। इस महान देश की प्रगति और विकास गाथा लगातार लिखी जा रही है। स्वर्णिम भारत की आभा में दमकते मानवता और निखरते विश्व की ये तस्वीर भारत का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह। Every last wave counts, every last smile counts. The Prime Minister's carcade slowly inching its way in the direction of Rashtrapati Bhavan. A benign sun, a graceful celebration, a powerful celebration, a meaningful celebration, and a wonderful way to begin the morning of the 26th of January. प्रधानमंत्री अपने वाहन पर हैं, लेकिन वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बहुत दूर तक दीर्घाएं बनाई जाती हैं। लगभग 80,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी इस बार। कर्तव्य पथ, जैसा कि हम सब जानते हैं, लगभग 3 किलोमीटर लंबा मार्ग और उसका ये हिस्सा जहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला। To dream, desire and dedicate only has meaning if we deliver. And that's been the aim of governance over the years, and that is what makes India stand tall in the comity of nations. As the elected leader of the largest democracy in the world, Prime Minister Narendra Modi waving to the source of the strength of his governance, the people of India. Today, the nation, with its values and ideals its founding fathers gave it, its ability to navigate challenges, has stood the test of time. India's people and principles, we are
hopeful, will propel its engines, driving change, powering growth, and giving direction. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रयास है कि जो भी दर्शक यहां पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, कर्तव्य पथ के दोनों ओर कोई भी निराश नहीं हो। हर व्यक्ति को वो व्यक्तिगत तौर पर अभिवादन प्रेषित करना चाहते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। ये 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट प्रधानमंत्री जी का काफिला कर्तव्य पथ के दूसरे छोर की तरफ बढ़ चला और इधर ये बात बार बार मन में आती है कि जब मन में हो कल्याण का संकल्प, तब सतत कर्म और परिश्रम ही मात्र एक विकल्प। ना कोई थकान है, ना भी विश्राम है। जन कल्याण का आह्वान है, उम्मीदों का आसमान है। गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद। अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय, शानदार और कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। बताइए आपको, कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वज फहराया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया है और उसके बाद देखिए कार्यक्रम का भव्य आयोजन यहां पर हुआ और बारी बारी सभी जो गणमान्य मेहमान है यहां से रवाना हुए। कई राज्यों की झांकियां यहां पर देखी गई हैं। आपको बताएं कि आज इस बार जो है वो वंदे मातरम की थीम थी, जिस पर गणतंत्र का जश्न हमको नजर आया है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड ने भी यहां पर प्रदर्शन किया। सुखोई, राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुए और शुरुआत होती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराने से। इस दौरान राष्ट्रगान हुआ, 21 तोपों की सलामी हुई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड के जो मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट थे, वो इस बार यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा थे और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। तो समारोह लगभग 90 मिनट तक चला। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई थी। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली गई। यह है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित था। तो फिलहाल क्योंकि परेड खत्म हो चुकी है और परेड खत्म होने के बाद सबसे आखिर में पीएम मोदी जो है वो रवाना हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी परंपरा को निभाते हुए गैलरी में बैठे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और उन सब से मिलते हुए वो नजर आए। और ये परंपरा प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से वो निभाते नजर आ रहे हैं। जब भी ये राष्ट्र कार्यक्रम होते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में बैठे हुए तमाम लोगों के बीच जाते हैं और खास तौर से बच्चों के बीच में जाते थे। हालांकि 2020 के बाद से बच्चों के बीच